Already in chemistry, in chemistry class 11, the first chapter, that is basic concept of chemistry, has been completed. Lots of concept has been given. Second one is structure of atom, that is completed, and lots of concept has been given. Okay. Third, chemical bonding. Actually, before chemical bonding, we have to discuss mainly periodic table. But now, while teaching chemical bonding, lots of concept regarding what periodic table has been given, and also during structure of atom also, some concept has been given. So periodic table, I will discuss while teaching the inorganic chemistry. A few concepts are there, and maximum concept has been completed in with the help of other chapter. And after chemical bonding, gaseous state by state of matter has been completed, and full concept has been given. And in physical chemistry, in chapter 5, I think that is thermodynamics, actually, which is related to physics. Okay, same thermodynamics also we have to discuss in physics also. Same chapters will be there. Some in only difference will be in physics, application part will be there, and in chemistry, chemical part will be there. Okay, but thermodynamics has a vast concept, so I will start that chapter later on. And chapter 6, that is last chapter of physical chemistry, that is acid base and chemical equilibrium. So let us start this chapter. This is also very important chapter. Actually, this chapter is related to what experiment जो भी करना है इस chapter से related होगा. Okay, that's why let us start, and very important chapter. So in this regards now we'll discuss details. अब BSc level में भी BSc level का भी कुछ मैं बताऊंगा, क्योंकि इस चीज को समझने के लिए you have to know details. जैसे एक मॉलिक्यूल है AB, एक्वस सॉल्यूशन में, मतलब पानी में उसको रखा है, पानी में डाल दिया उसको. We keep some molecule in aqueous solution. Aqueous means water. Okay, so अगर वो डिसॉल्व होता है, मतलब आयंस में कन्वर्ट होता है, दो पार्ट में भाग होते हैं, तो वन इज कैटायन, पॉजिटिव आयन, अदर इज एनायन. ठीक है, केमिस्ट्री केमिकल बॉन्डिंग में इससे थोड़ा बहुत आइडिया होगा. ठीक है, जैसे एसिटिक एसिड है, एसिटिक एसिड एक्वस सॉल्यूशन में अगर डालने से, पानी में डालने से, दिस बिकम वन नेगेटिव आयन एनायन, अदर पार्ट इज पॉजिटिव आयन हाइड्रोजन आयन. ठीक है, तो ये जो आयन प्रोड्यूस होता है ना, आयन, that type of solution is called electrolytic solution. Electrolytic solution, when ion is produced, when some compound is dropped, put in water, aqueous solution, if ions is produced, that type of solution is called aqueous solution. और aqueous solution क्या करते हैं, current का heat, current conduct करते हैं. Electricity can pass through aqueous electrolytic solution. Electrolytic solution. Okay, so mainly ये जो electrolytic solution होगा वो एसिड होगा या तो बेस होगा, बाद में आएंगे हम लोग. बट ना aqueous solution जिसमें आयंस प्रोड्यूस होता है ना, which can conduct electricity, that is called electrolytic solution. Electrolytic समझ में आएगा, समझ है ना, very important. एंड ऐसे मान लो शुगर को अगर पानी में डालने से ना कोई आयंस प्रोड्यूस नहीं होता है. शुगर वाटर करंट कंडक्ट नहीं कर सकता. प्योर शुगर वाटर cannot conduct electricity, that is non-electrolytic solution. Means the solution which cannot conduct electricity, that is called non-electrolytic solution. उसका रीजन क्या है कि अंदर में कोई भी आयंस नहीं है, कोई आयंस प्रोड्यूस नहीं करता है. जैसे मान लो कि हम लोग जो पंप से पानी निकालते हैं ना, है ना, उसमें करंट लगेगा थोड़ा सा, क्योंकि उसमें आयंस है, मिनरल्स है, इसलिए तो फिल्टर करना पड़ता है. ओके, प्योर वाटर में कोई आयंस नहीं होता है. सो वी हैव टू डिस्कस अबाउट फैराडेज इलेक्ट्रोलाइट. ऑलरेडी आपको मालूम चल गया इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, जो एक्वस सॉल्यूशन में स्प्लिट होता है, वो आयंस प्रोड्यूस करता है. ओके, सो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में एग्जांपल होगा एक स्ट्रॉन्ग एसिड. इलेक्ट्रोलाइट या तो एसिड होगा. ठीक है, एसिड कौन कौन है उसके लिए हम लोग का थ्योरम होगा, कुछ लॉ होगा, उससे हमको पता करना है व्हिच आर एसिड. ओके, स्ट्रॉन्ग बेस होगा, स्ट्रॉन्ग एसिड जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड,
दिस सल्फ्यूरिक एसिड इज कॉल्ड किंग ऑफ एसिड। नाइट्रिक एसिड लेबोरेटरी में इस अवेलेबल है। फिर स्ट्रॉन्ग बेस में सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। हाइड्रोक्साइड ऑफ ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2 जनरली स्ट्रॉन्ग होता है, और ग्रुप 17, 16, 15, ठीक है, नाइट्रोजन ग्रुप, ऑक्सीजन फैमिली एंड हेलोजन फैमिली, उसका जो एसिड होता है जनरली वो भी क्या होता है, स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। ठीक है, सिर्फ ऑर्गेनिक एसिड लोग वीक होता है। एंड वी हैव सम स्ट्रॉन्ग सॉल्ट। स्ट्रॉन्ग सॉल्ट होने के लिए क्या होना है, कॉम्बिनेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड, एसिड प्लस बेस हमेशा क्या प्रोड्यूस होता है, सॉल्ट। यू ऑलरेडी नो दैट एसिड प्लस बेस ऑलवेज गिव सॉल्ट। तो कॉम्बिनेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस, आइदर वन स्ट्रॉन्ग, मतलब या तो स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का कॉम्बिनेशन, या तो एक स्ट्रॉन्ग एसिड और एक वीक बेस, या तो वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस का कॉम्बिनेशन। ओके, फॉर एग्जांपल NaCl, ये दोनों एक्चुअली स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का पार्ट है। ये वीक बेस स्ट्रॉन्ग एसिड का पार्ट है। ठीक है, वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का पार्ट है। ये दोनों स्ट्रॉन्ग का पार्ट है। सो दीज आर द एग्जांपल ऑफ सॉल्ट। सॉल्ट में एक एसिड का पार्ट होता है, एक बेस का पार्ट होता है। ओके, जैसे NaOH है, सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस HCl, दिस इज ए स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस, दिस इज स्ट्रॉन्ग एसिड, you will get what, NaCl. This salt is strong salt. And one thing, strong means 100% dissociate होगा। ठीक है, 100%। अल्फा का वैल्यू 1 होगा। अल्फा क्या है बाद में समझ में आएगा। अल्फा approximately is equal to 1. This is called degree of dissociation is 1. 100% dissociate का मतलब क्या है, 1 मोल अगर HCl हम लोग पुट किया पानी में, अभी 1 मोल क्या है आपको समझ में आना चाहिए, मोल कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। 1 मोल का मतलब क्या है, 6.02 × 10⁻23 हाइड्रोक्लोरिक एसिड का मॉलिक्यूल। अभी पानी में ड्रॉप करने के बाद पूरा अगर स्प्लिट होगा, पूरा अगर डिसोसिएट होगा, तभी जाके हाइड्रोजन आयन 1 मोल होगा, क्लोरीन आयन 1 मोल होगा। 100% अगर डिसोसिएट नहीं हुआ तो ये 1 मोल नहीं बनेगा। समझ में आ रहा है? वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप कोई एसिड बा कोई बेस बा सॉल्ट अगर डिजोल्व किया है तो पूरा 100% डिसोसिएट होगा, तभी वो स्ट्रॉन्ग या तो एसिड या तो बेस या तो सॉल्ट कहलाएगा। ओके, नेक्स्ट वी हैव टू डिस्कस वीक इलेक्ट्रोलाइट। वीक एसिड हो सकता है, वीक बेस हो सकता है, वीक सॉल्ट हो सकता है। वीक एसिड जनरली ऑर्गेनिक एसिड होता है, जो हम लोग खाने का जो फूड होता है उसमें होता है। जैसे विनेगर है, विनेगर मतलब क्या है, एसिटिक एसिड। ओके, कार्बोक्सिलिक एसिड का सेकंड मेंबर है। फॉर्मिक एसिड मिर्ची वगैरह में होता है। इंसेक्ट वगैरह काटता है तो वहाँ पे जो जलन होता है दैट इज ड्यू टू फॉर्मिक एसिड। दिस आर वीक एसिड। मतलब ना ये सब पानी में डिजोल्व करने से सिर्फ 5% डिजोल्व होगा। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन 0.05, बहुत कम होता है, इसलिए वीक एसिड है। और वीक बेस हो गया ये NH4OH, लैब करोगे तो समझ में आ जाएगा। ये वीक सॉल्ट है NH4CN, मतलब दोनों पार्ट, मतलब एक वीक एसिड और एक वीक बेस अगर कंबाइन होता है तो वीक सॉल्ट फॉर्म होगा। ओके, तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कितना होता है, बहुत कम होता है, 5% होता है। 5% यानी 1 मोल अगर हम लोग एसिड पानी में डिजोल्व करेंगे तो आपका आयंस, हाइड्रोजन आयन कितना मोल्स प्रोड्यूस होगा, 0.05 मोल प्रोड्यूस होगा। पूरा का पूरा डिजोल्व नहीं होता है। So RNA's concept of acid and base. Acid are those substances which give hydrogen ion in aqueous solution only. Only one hydrogen, मतलब only one positive ions. Only one positive ions. ठीक है, इसका क्यों ऐसा बोल रहा है उसका कारण है, हाँ मैं बाद में बताऊंगा। जो हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस करते हैं, जैसे HCl हो गया, HCl अगर पानी में डालोगे तो क्या होगा, हाइड्रोजन प्लस एंड क्लोरीन माइनस प्रोड्यूस होगा। तो हाइड्रोजन आयन जो प्रोड्यूस कर रहे हैं वो एसिड है, और बेस आर दो सब्सटेंस हु गिव्स OH माइनस आयन इन एक्वस सॉल्यूशन। जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड अगर पानी में डालोगे तो क्या प्रोड्यूस होगा, सोडियम प्लस एंड OH माइनस। तो OH माइनस जो प्रोड्यूस करते हैं वो बेस है, हाइड्रोजन आयन जो प्रोड्यूस करते हैं वो एसिड है। बट इसका बहुत सारा लिमिटेशन है। ठीक है, तो RNA's कॉन्सेप्ट के पास हम लोग का और भी कॉन्सेप्ट पढ़ना है, ल्यूइस बेस
ओके, वन स्टेट लोरी थ्योरी हम लोग डिटेल्स पढ़ेंगे। बेसिक अभी तक पता है, इसे स्टार्ट किया तो इतना समझ लो। नेक्स्ट वीडियो में मैं तीनों थ्योरम को क्लियर करूँगा, सबका ड्रॉबैक्स होगा। इसका जस्ट मैंने बताया, इसका भी ड्रॉबैक्स है। फिर मतलब कोई भी एक थ्योरी में सबका एसिड बेस का प्रॉपर्टी एक्सप्लेन नहीं कर सकता है, ठीक है। बाद में धीरे धीरे आपको समझ में आएगा। और ये चैप्टर भी बहुत वास्ट है और बहुत काम का है। ओके फाइन।